نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ. ہم لوگ مشتقات پڑھ رہے ہیں اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المکان ان کی اسٹڈی کی تھی. آج ہم اسم الآلہ کی اسٹڈی کریں گے. مشتقات میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ عربک لٹریچر میں اس کا بہت استعمال ہے. گو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث میں اس کا زیادہ استعمال نہیں ملتا، لیکن کیونکہ ہم مشتقات کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم لوگ گرامر سیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز کو سیکھنا ہے. آج ہم پڑھیں گے اسم الآلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اسم الآلہ اور انگلش میں سے کہا جاتا ہے the noun of instrument. سب سے پہلے ہم اسم الآلہ کا لغوی معنی دیکھتے ہیں. آلہ کا معنی ہے آلہ، ذریعہ، ٹول. مثلا قلم، چابی، چھری، ترازو، چراغ وغیرہ سب آلات ہیں. تو اسم الآلہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اسم الآلہ وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے کے آلے یا ذریعے کا معنی دے. سادہ لفظوں میں جس چیز کے ذریعے کوئی کام ہو وہ اسم آلہ کہلاتا ہے. مثلا میں اگر آپ سے سوال کرتی ہوں کہ دروازہ کس چیز سے کھلتا ہے تو آپ جواب دیں گی چابی سے. تو چابی کیا ہوئی؟ آلہ. اسی لیے مفتاح اسم آلہ ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہم کس چیز سے لکھتے ہیں تو آپ کہیں گی قلم سے. تو قلم بھی آلہ ہے، یعنی قلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم الآلہ کن افعال سے بنتا ہے؟ تو اسم الآلہ صرف ثلاثی مجرد فعل سے بنتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ فعل لازم سے بھی بن سکتا ہے اور متعدی سے بھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم الآلہ کن اوزان یا مولڈز پر بنتا ہے. تو سب سے پہلا وزن مفعال ہے، یہ بہت کامن ہے، مفعال. اور تیسرا وزن ہے مفعلۃ. اب ہم ان کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. تو مفعال سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے روٹ لیٹر ہے دواد را با، باب دواد سے. اور مفعال کے وزن پر اسم الآلہ بنے گا مدراب، مارنے کا آلہ. دوسرا روٹ لیٹر ہے سین طارا، باب نون سے. اور اسم الآلہ کیا بنے گا؟ مستار، لکیر کھینچنے کا آلہ، یعنی اسکیل، رولر. پھر روٹ لیٹر ہے ہمارے پاس را سین میم، باب فا سے. مرسمن، لکھنے والی چیز. اب ہم مفعال کے وزن پر دیکھتے ہیں اسم الآلہ کی ایگزامپلس. فاتح، باب فا سے. اور مفعال کے وزن پر بنے گا مفتاح، کھولنے کا آلہ یعنی چابی. کاف یا لام، باب دوات سے. اور مفعال کے وزن پر ہم بنائیں گے اسم الآلہ مکیال. مکیال کا کیا مطلب ہے؟ ناپنے کا آلہ.
फिर हमारे पास रूट लेटर है वाओ, ज़ा, नून, बा, द्वात से, और मिफ़आलुन के वज़न पर बनवाएँ इस और मिफ़आलुन के वज़न पर बनेगा मिफ़ज़ानुन। अब चेंजेज़ आई क्योंकि यहाँ हमारे पास हर्फ़ इल्लत आ रहा है, तो ये बन जाएगा मीज़ानुन, यानी वज़न करने का आला, वेइंग स्केल जिसे आप कहते हैं। मिफ़अलतुन के वज़न पर देखते हैं कि हमारे पास कौन से इस्मुल आला हैं। सबसे पहले है काफ, नून, सीन, बा, द्वात, मिकनसतुन। मिकनासतुन कहते हैं सफाई करने का आला, यानी झाड़ू, वैक्यूम क्लीनर वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास लाम, आइन, काफ, बा, फा से मिल अकातुन, यानी चम्मच, स्पून। और क्योंकि लाम आइन काफ का मतलब है चाटना, तो मिल अकातुन चाटने वाला आला, तो इसको चम्मच कहा जाता है। हा, फा, दुआ, बाप सीन से मिहफाजतुन, मिफआलतुन के वजन पर, यानी बटवा, पर्स या वॉलेट। इन तीनों औज़ान को देखते हैं कि वाहिद, मुसन्ना और जमा में कैसे लिखे जाएँगे और इनकी रफ़ा, नस्ब और जर की हालत क्या होगी। तो पहले हमारे पास वाहिद है मिफ़आलुन। अब हालत नस्ब क्या होगी? मिफ़आलन, और जर मिफ़आलिन। मुसन्ना, जैसे वाहिद इस्म को मुसन्ना बनाया जाता है, उसी तरह इसको मुसन्ना बनाएँगे मिफ़अलानी, और इसकी हालत नस्ब होगी मिफ़अलैनी, और जर भी मिफ़अलैनी। अब इसकी जमा इंटरेस्टिंग है। इसकी जमा मफ़ाइलु है। ठीक है? और ये गैर मुनसरिफ़ इस्म है, और गैर मुनसरिफ़ इस्म हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, लेकिन अगर उस पर अल आ जाए तो फिर वो ज़ेर कबूल करता है। तो नस्ब और जर क्या होगी? मफ़ाइला। दूसरा वज़न है मिफ़आलुन, इसको भी देख लेते हैं। वाहिद इस्म रफ़ा में कैसे है? मिफ़आलुन, हालत नस्ब में मिफ़आलन, और हालत जर में मिफ़आलिन। और मुसन्ना क्या बनेगी? मिफ़आलुन से मिफ़आलानी, और नस्ब और जर आ जाएगी मिफ़आलैनी। ठीक है? इसकी जमा भी अलग से है, मफ़ाइलु, ये भी गैर मुनसरिफ़ इस्म है। ठीक है? और हालत नस्ब और जर में कैसे आएगा? मफ़ाइला। तीसरा वज़न है हमारे पास मिफ़आलतुन, इसको भी देख लेते हैं। इस तरह से बनेगा, तो वाहिद इस्म जो है हालत रफ़ा में होगा मिफ़आलतुन, हालत नस्ब मिफ़आलतन, हालत जर मिफ़आलतिन। अब इसकी मुसन्ना क्या है? मिफ़अलतानी, फिर मिफ़अलतैनी, और मिफ़अलतैनी नस्ब और जर हो जाएगी। इसकी जमा भी मफ़ाइलु है, ठीक है? और नस्ब और जर में मफ़ाइला, मफ़ाइला। इस्मुल आला के तीनों औज़ान की जमा गैर मुनसरिफ है, लेकिन जब अल दाखिल होगा तो ये हालत जर में ज़ेर कबूल करेगा। मफ़ाइलु से रिगार्डिंग एक पॉइंट को नोट कीजिएगा कि मिफ़आलुन की जमा मफ़ाइलु है, लेकिन कुरान मजीद, फुरकान हमीद में इसकी जमा मफ़ाइलु के वज़न पर है। और स्कॉलर्स बताते हैं कि कुरान मजीद में 3 मरतबा ऐसे इस्तेमाल हुआ है। अब हम इस्मुल आला और आला में फ़र्क देखते हैं। इस्मुल आला ऐसा इस्म होता है जो ख़ास वज़न पर होता है और आले का मफ़हूम देता है। जैसे इसके 3 वज़न कौन से हैं? मिफ़अलुन, मिफ़आलुन और मिफ़अलतुन। जब आला सिर्फ़ आले का मायने दे और किसी फ़ेल से ना निकला हो। जब हमने मुश्तक़ात की स्टडी स्टार्ट की थी, तो वहाँ हमने अल्फ़ाज़ की बुनियादी तक़सीम को सीखा था कि बुनियादी तौर पर अल्फ़ाज़ या तो इस्म मुश्तक़ होते हैं या इस्म जामिद होते हैं। जो अस्मा और अफ़आल किसी कायदे के तहत बनते हैं, वो इस्म मुश्तक़ कहलाते हैं। और इस्म जामिद वो इस्म है जिससे ना नया लफ्ज़ बने और ना ही वो किसी इस्म से बना हो।
ये किसी खास कायदे या वज़न के तहत नहीं होते। अच्छा, यहाँ हम एक ऑब्जर्वेशन को सीखने जा रहे हैं कि हर इस्म आला ज़रूरी नहीं कि वो इन्हीं 3 औज़ान पर बने, ठीक है? बाज़ इस्म आला जो है बाज़ इस्म आला समाई भी हैं, जिन्हें इस्मुल आला जामिद भी कहा जाता है, ठीक है? और ये किसी कायदे के तहत नहीं बनते। कुरान मजीद से एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं हम इसकी। खियाती, खियातुन था, सुई को कहते हैं। सम्मिल खियाती, सुई का नाका। फिर कलमी, कलमुन, ठीक है? और बिल कलमी, कलम के ज़रिए। तो कलम भी इस्मुल आला है और ये जामिद है, इस्म जामिद है। फिर है सकीनन, ये है सकीनुन, छुरी, ठीक है? सकीनन एक छुरी। असा, असा भी एक इस्म जामिद है, समाई है और असाहू अपनी लाठी। तो ये इस्म आला जामिद की एग्ज़ाम्पल्स थी। कुरान मजीद से हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं मज़ीद। सूरह हूद की आयत नंबर 84 है हमारे सामने। मिक्याला वल मीज़ाना, और सूरह हूद की ही आयत नंबर 85 है। यही दोनों इस्मुल आला यहाँ भी है, मिक्याला वल मीज़ाना। मिक्यालुन जो है ये गल्ला नापने का आला उसको कहते हैं, और मीज़ानुन तराजू वज़न करने या तोलने का आला। और मिक्याला कुरान मजीद में ये 2 बार ही इस्तेमाल हुआ है। मवाज़ीनु, ये है मफ़ाइलु के वज़न पर मीज़ानुन की जमा, ठीक है? मवाज़ीनुहु उसके पलड़े। फिर है मिथक़ाला, सूरह निसा आयत नंबर 40, और ये मिफ़आलुन के वज़न पर है जिसके साथ वज़न किया जाए। इसकी जमा है मसाक़ीलु। कुछ और एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। सूरह अन-नूर आयत नंबर 35 में है मिस्बाहुन, चिराग, और इसकी जमा है मसाबीहु। सूरह अल-हज आयत नंबर 21 को देखिएगा। मकामिउ, ये मफ़ाइलु के वज़न पर है। हथौड़े, इस्मुल आला। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 59 को देखिएगा। यहाँ है मफ़ातिहु, मफ़ातिहुल गैबी, गैब की चाबियाँ। इसका वाहिद है मिफ्ताहुन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस्मुल आला को स्टडी किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया इस्म मुश्तक सीखेंगे। नूर हिदायत वर्चुअल इस्लामिक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।